trophies from elocution competition as a part of Azad Day celebration and as a part of Azad Literacy Festival. तो इसमें क्या है, ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन सारे पार्टिसिपेंट्स को हमने ईमेल किया है, तो आई थिंक सब लोग वाकिफ है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए यहाँ पे आके। तो 5 मिनट्स है आप लोगों को अपने एलोक्यूशन स्पीच देने के लिए। ऑलरेडी टॉपिक इन्फॉर्म किया गया है, मैं फिर से बता देती हूँ जो टॉपिक है। मौलाना आजाद कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेरी वर्ल्ड इन इंग्लिश, एंड देन मौलाना आजाद की अदबी खिदमत, और हिंदी में मौलाना आजाद का साहित्य जगत में योगदान। तो ये 3 लैंग्वेजेस में यहाँ पे कंपटीशन होने वाले हैं। Very bright and energetic afternoon to everybody, especially the jury members over here, our faculty members and my dear brothers and sisters. Today I have been invited here and I feel greatly blessed to have got this opportunity to speak or to give my views on the literary contribution of Maulana Azad. In the grand tapestry of Indian history, there are some luminous threads that have woven the fabric of nation's progress and freedom. One of these threads shines brilliantly as the man whose life was dedicated to the pursuit of knowledge, the fight for freedom, and the spirit of unity. One of these threads shines brilliantly as a man, a great personality, a great philanthropist, educationalist, debater, politician, freedom fighter, journalist, and a multifaceted personality. Born on 11th of November 1888 on the pious land of Makkah Muazzama, whom we call Maulana Azad. In order to understand the literary contribution of Maulana Azad, one has to get into the mind first. He is the man, the myth, and the legacy. And when Maulana Azad when he was at the age of 16, he was mistaken for his father when he attended the Muslim Educational Conference in Lahore. Allama Shibli then recognized his genius and invited him to edit Al-Nadwa, the journal devoted to the Muslims' learning. Before that, he had already dazzled the knowledgeable and the intellectual class by his writings such as Lisan al-Sidq and later by Al-Hilal and Al-Balagh in 1912 and 1914 consecutively. It also marked the maturity of Urdu journalism. Maulana Azad was a prolific writer and debater. His work composed of a distinctive and dynamic areas and subjects such as history, culture, politics, religion, etc. His autobiography, India Wins Freedom, one of his finest and most celebrated works in the Indian history, in which he provides a first-hand account of the Indian freedom struggle and gives an insight into the political and social dynamics of the 20th century India. So Maulana Azad, when in 1912 he published his Lisan Al-Hilal, it was a great success. So sooner or later each reached a target of 290,000 papers published in 1.5 years only. But later it was unfortunately banned by the British government under the Press Act. He was a great writer, poet, philosopher, and a debater, as stated by his name, Abul Kalam, which literally means Lord of Dialogues. His literature, his writings, his works have nurtured the Indian history and the Indian freedom struggle. Some of his famous works are Ilam-e-Haq, Masla-e-Khilafat and Jaziratul Arab, Qawl-e-Faisal, Nashk-e-Azad, Tazkira, Al-Hilal, Al-Balagh, Lisan al-Sidq, Nairang-e-Alam, Ghubar-e-Khatir, one of his famous works, which is a collection of 24 letters which he wrote to his friend when he was imprisoned during the Quit India movement in 1942. So basically, his writings, his works and his literary contribution is not confined to the freedom struggle. He was a learned scholar, a philosopher, a great writer. When I read Maulana Azad, I find that he primarily focused on 3 things.
through his writings and poetry. First is promotion of diversity. He wanted an inclusive India with lots of ideas and emotion, and everybody should be nurtured. The second one is revival of Urdu literature. Had Maulana Azad not contributed so much in Urdu journalism, Urdu would not have flourished to this extent. And the last but not the least is literary criticism and analysis. Maulana was not only a prolific writer and a debater, he was a critical analyst of any prose and poetry. And at last, I would like to conclude my speech and my words by quoting Gandhi, who is the father of the nation. What he said, that a person of the caliber of Plato, Aristotle and Pythagoras. That's all. Thank you. You have been a great audience. Ghulam Ghosh Sheikh, MA Hindi, School of Language, Linguistics and Philology. धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। मंच पर आसीन हमारे निर्णायक महोदय और हमारे समक्ष उपस्थित हमारे प्यारे भाई बहन, उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। इसी के आधार पर आज मैं साहित्य के ऊपर जो मौलाना आजाद की कार्यशैली है, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहूंगा। साहित्य एक समाज का दर्पण है। साहित्य समाज का एक दर्पण होता है। किसी भी राष्ट्र की अगर स्थिति को अगर हमें जानना है तो उसका एक साहित्य को पढ़िए। उसी साहित्य के अनुरूप में आज मैं मौलाना आजाद के साहित्य जगत में योगदान के बारे में आपको बताना चाहूंगा। महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा आपको और ये बताना चाहूंगा कि साहित्य का जो विकास है वो आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक होता चला आ रहा है, लेकिन मौलाना आजाद जो साहित्य की रचना की है वो आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में मौलाना आजाद का जन्म भले ही सऊदी के मक्का में हुआ था 1888 में, लेकिन उनकी जन्मभूमि वो है, लेकिन कर्मभूमि इस भारतीय परिवेश को माना जाता है। भारतीय परिवेश में ही मौलाना आजाद ने अपनी विभिन्न शैलियों से साहित्य का निर्माण किया। जब मौलाना आजाद अपने साहित्य का निर्माण कर रहे थे तो उस टाइम भारत एक जंजीरों में बंधी हुई कड़ियों में था, जहां पर ब्रिटिशर्स भारत पर एक हुकूमत कर रहे थे। भारत पर हुकूमत कर रहे थे तो जाहिर सी बात है, स्वाभाविक रूप से कि उस टाइम जब साहित्य लिखा जाएगा तो वो उस अभाव से ग्रसित होगा। उसी अभाव में आजादी की जीत पर उन्होंने अपनी एक किताब लिखी कि भारत की आजादी थी। उसी के अनुरूप जब उन्होंने उनकी साहित्य की रचना के में हम देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि उनका जो एक कार्य क्षेत्र था वह विभिन्न रूपों में हमें मिलता है। जहां पर यूजीसी जिस बिल्डिंग के नीचे हम बैठे हुए हैं वो एक यूनिवर्सिटी, एक विश्वविद्यालय की बिल्डिंग है, जहां पर इसकी स्थापना जिस यूजीसी के अंतर्गत आती है 1956 में मौलाना आजाद के द्वारा उसकी स्थापना की जाती है। वहीं 1953 में विभिन्न प्रकार की अकादमी की स्थापना की जाती है, जिसमें साहित्य के लिए साहित्य अकादमी की स्थापना की जाती है और रंगमंच के लिए नाटक की स्थापना की जाती है। और तीसरे रूप में हम अगर देखते हैं तो ललित कलाओं के लिए एक ललित कला अकेडमी की स्थापना की जाती है। उनका लेखन, शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता की एक ललक हमारे इस परिवेश में एक ऐसा माहौल पैदा किए है कि कोई अगर एक जगह हम जैसे अगर एक छात्र हैं तो हम एक जगह मारूफियत में नहीं रह सकते, इसलिए कि अगर कोई भी एक लीडर, एक शिक्षावाद, जिसकी हम एक मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 11 नवंबर को, अगर वो एक राष्ट्र का शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी हो सकता है तो हमारे अंदर भी ये निपुणता होनी चाहिए कि हम भी उस 4-5 पहलुओं पर हम कार्य कर सकते हैं। किसी को शिक्षा ही प्रदान करना वो एक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र को अलग अलग रूपों में बांटना ये एक महत्वपूर्णता है। इसीलिए मौलाना आजाद के इस साहित्य योगदान में गुलामी की जंजीरें, आशा, तजुर्बा, इनकी एक मुख्य रचनाओं के रूप में हम मान सकते हैं। जहां तक कि इनकी शिक्षा शैली की बात हम करें तो उर्दू जबान में उन्होंने बहुत सारी रचनाओं का एक संग्रहित रूप दिया है, परंतु समय का अभाव होने के कारण और इनकी होने के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मजहर सुबहानी, ये हाज़रीन बस मोहब्बत, अस्सलाम वालेकुम।
सामईन इकराम, सन 57 का गद्र खत्म हो चुका है। दिल्ली की गलियों में पानी नहीं बल्कि खून बह रहा है। ये वक्त था जब बरतानवी साम्राज्य का परचम पूरी शान और शौकत के साथ हिंदुस्तान की सरजमीन पर लहर रहा था। माओ की गोदियां उजड़ चुकी थीं, बीवियां बेवा हो चुकी थी और बच्चे यतीम और लाचार हो चुके थे। किले मोहल्ला में पलने वाले नवाबजादे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर थे। लोगों को उस वक्त फिक्र थी तो इस बात की कि हम रात में खाएंगे तो क्या खाएंगे। लोगों को फिक्र थी तो इस बात की कि हम शब को सोएंगे तो कहाँ सोएंगे। इसी भीड़ में और इसी सदाए एहतजाज में एक शख्स उठता है। मक्का की पाक और मुकद्दस सरजमीन पर हिंदुस्तान की वादियों में ठहरता है और आकर हिंदुस्तान के लोगों को ये पैगाम देता है कि इल्म हासिल करो ताकि तुम्हारी दुनिया भी संवारी जा सके, तुम्हारी दीन भी संवारी जा सके। मौलाना अबुल कलाम आजाद इल्म के उस पैगंबर का नाम है जिन्होंने जमाने को इस बात का पैगाम दिया कि वो तालीम जो दिल से दी जाती है वो समाज में इंकलाब ला सकती है। आज हम और आप अगर इस जगह पर बैठे हुए हैं और मौलाना आजाद को याद कर रहे हैं तो यकीनन ये उसी इंकलाब का एक सरचश्मा हयात है जो मौलाना ने आज से सदियों पहले कहा था। अजीजाने बज़्म मोहब्बत, अदब, तालीम, इल्म और ज़बान ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मुनहसिर हैं। लेकिन याद कीजिए अगर मौलाना आजाद ने दिल्ली की सरजमीन पर उर्दू कांग्रेस मुनक़िद ना की होती और आजाद हिंदुस्तान के सबसे पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया ना होता तो शायद मानू का वजूद भी मिट गया होता। मौलाना आजाद ने ना सिर्फ एक कांग्रेस इनेकाद की, मौलाना आजाद ने ना सिर्फ उसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाया बल्कि मौलाना ने एक फिक्र अंगेज खिताब दिया और पंडित नेहरू की ज़बानी इस बात का एतराफ़ करवाया कि यकीनन तक़सीम हिंद के बाद हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान और अदब का हाल बहुत खस्ता है और मजबूर किया हुकूमत हिंद को कि अगर हिंदी हिंदुस्तान की पहली सरकारी ज़बान बन चुकी है तो उर्दू को भी हिंदुस्तान की दूसरी सरकारी ज़बान बनाने का दर्जा देना चाहिए। ये मौलाना की सही मुसलसल थी और मौलाना की काविशों का नतीजा था कि आज हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान और उर्दू अदब अपने मुकम्मल सरमाया हयात के साथ हमारे इलाक़े के बीच मौजूद है। तक़सीम हिंद के बाद जब बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक हिंदुस्तान छोड़कर हिजरत के पाक नाम से धोखा खाकर पाकिस्तान चले गए तो हिंदुस्तान की सारी उर्दू इदारे अपने आप को यतीम और बेकस महसूस करने लगे। मौलाना आजाद ने उन जो उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा कर रहे थे, जिसमें सबसे अहम नाम दारुल मारिफ अल उस्मानिया का है। इदारा बंद हो चुका था, खस्ता हाल था। मौलाना अबुल कलाम आजाद वज़ीर तालीम थे। उन्होंने अपनी ज़ाती मेहनत और काविशों के बदौलत माहाना 60,000 रुपए का नजराना मुंतखब किया। इसको देखते हुए अब्दुल माजिद दरियाबादी कौम से खिताब करते हैं और अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि खुदा गरीब के रहमत करे वज़ीर तालीम हिंद मौलाना अबुल कलाम आजाद को कि उनकी मसीहाई नफ्सी ने असर नौ हमें एक नई जिंदगी अता कर दी। अजीज़ाने बज़्म मोहब्बत, तक़सीम हिंद के बाद उर्दू की खस्ता हाली कुछ यूं थी कि ज़बान और अदब बेसर व सामानी के आलम में दर दर की ठोकरें खा रहे थे। चाहे वो शिबली नोमानी का दारुल मुसन्निफीन हो या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इदारा तहज़ीबुल अखलाक हो, मौलाना आजाद ने हर जगह अपनी एक छाप छोड़ी है। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरता गया। मौलाना ने लातादाद इदारों की सरपरस्ती फरमाई। मौलाना ने लातादाद किताबें लिखी। मौलाना ने कौम की रहबरी के साथ अशार लिखे और आपने ना सिर्फ किताब लिखी, ना सिर्फ अशार लिखे, बल्कि दुनिया को एक नई अदब की फिक्र दी। अशार के नए नए मेयार मुतय्यन किए। खुदा बंदा मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उर्दू अदब के साथ साथ अरबी और फारसी अदब को भी तक़वियत बख्शी, ज़बान को भी एक नए मेयार तक पहुँचाया और उसी के साथ साथ कौम के दरमियान साइंटिफिक मेयार पैदा किया। तालिब इल्म को उर्दू अदब, फारसी अदब और अरबी अदब के साथ साथ साइंसी जहत से काम लेने का पैगाम दिया। परवरदिगार उस तुरबते मुक़द्दस पर अपने अनवार की बारिशें फरमाए जिसमें मौलाना आजाद आराम फरमा रहे हैं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में जीदवर पैदा। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ।
पहले तो बोली कोई बात नहीं, तो ये लाइब्रेरी में आ जाइए। बहुत बहुत मुबारक। मुबारक कीजिए। हिंदी में क्या होता है?